Yes, it is complete. Biomolecules is complete. Okay. Okay. So I'm going to start with a new chapter that is from human physiology, human digestive system. Reason Malika के एग्जाम्स में वो चैप्टर आ रहा है, so I have to start with that chapter. Chapter's name is digestion and absorption. It's chapter 16. जो बच्चे sorry. MCQs I'll discuss. Yes, I'll discuss. I'll discuss in the end because there is no test today, so I'll discuss in the end. And बच्चे आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि सबके मार्क्स 1 2 3 4 ऐसे आए आउट ऑफ 20. So yes, they were difficult, no doubt about it. But if you have मतलब अगर आपने तैयारी thoroughly की होती तो then you must have scored easily. But no issues. I'll discuss in the end because जो MCQs की तैयारी है that is totally different. But you need to be thorough with the subject first. अभी तक सिर्फ जो चैप्टर टेस्ट दिया मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, उसमें आई हैव सीन इट्स अ लेंदी चैप्टर. उसमें टॉपिक्स थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, वायरस, वायरसेस, वायरॉइड्स और लाइकन्स. सिर्फ इन 5 टॉपिक्स का आपका टेस्ट था. अब नेक्स्ट क्लास में आपका टेस्ट होगा प्लांट किंगडम का या प्लांटे का. पहले आई विल रिपीट दैट चैप्टर इन योर संडेज एक्स्ट्रा क्लास, देन आई विल टेक योर टेस्ट. और प्लीज़ अपडेट योर सिलेबस जो आपके स्कूल्स में हो रहा है, सो दैट आई कैन स्टार्ट विद दोज चैप्टर्स रिवीजन. जिसके भी स्कूल में जैसे भी एग्जाम्स हैं, लक्ष्य आई थिंक यू ऑल्सो हैव योर एग्जाम्स दिस मंथ. Yes, ma'am. Just forward your syllabus through WhatsApp, okay? Okay, ma'am. Okay. So, chapter 16, that is digestion and absorption. It's a very interesting chapter. जहाँ हम अभी human चैप्टर कटा नहीं है. this chapter, just wait. यस मैम. Yes, ma'am. बच्चे ये ना अब वैसे तो deleted है. Yes, digestion and absorption is deleted. मलिका, आपके स्कूल में अभी भी करवा रहे हैं ये चैप्टर? मलिका? यस मैम, एग्जाम्स के अंदर तो बोला है कि आएगा. अच्छा, क्योंकि it is deleted from the syllabus. यस मैम, ये जब न्यू सिलेबस है तो उसके बाद ही स्टार्ट करवाया है. Okay, तभी just मैम ने कहा कि करना है. okay, just share this deleted syllabus file with your teacher and then ask, okay? Because it is Okay. not in the syllabus now. So let us start with the next chapter, which is coming in your exam. Okay? Just Okay, let me just confirm me by evening. Forward this PDF file to your teacher and ask her. Okay? Ma'am, can you send me the revised syllabus again? Okay, I'll do that. Okay. ठीक है बेटे. Okay. So I'm going to start with the next chapter, that is breathing and exchange of gases. Again, this is a very beautiful chapter. जहाँ हम ह्यूमन फिजियो की बात करेंगे, बहुत ही इजी टॉपिक्स आते हैं, इंटरेस्टिंग है. प्लांट फिजियो थोड़ा सा टफ पार्ट है, वो चैप्टर हम थोड़ा सा लेटली स्टार्ट करेंगे. एंड जो अभी चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो आप साथ साथ सुनोगे प्लस इसके नोट्स फॉर्म करोगे. ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो 10th क्लास में आपने पढ़ा था एज रेस्पिरेटरी सिस्टम. जब आपने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर किया था, देन यू हैव डन दिस चैप्टर एज रेस्पिरेशन, जो आपने टॉपिक किया था डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन. तो ये रेस्पिरेशन के अंडर था. रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी. इसका मतलब क्या है? हम खाना खाते हैं, दैट इज योर ग्लूकोज. आपने खाना खाया C6H12O6, and the breakdown of this food in the presence of oxygen to form CO2, water, and energy in the form of ATP. This process of oxidation of food, oxidation means addition of oxygen. ये food है, food is in the form of glucose. So this is broken down to CO2 and water plus energy, इसलिए this is known as respiration. So write down the definition of respiration.
Please write down the definition of respiration. It is a biochemical process It is a biochemical process where food is oxidized in mitochondria to release energy. Can you please repeat? Okay, it is a biochemical process where food is oxidized in mitochondria to release energy. It is a biochemical process where food is oxidized in the mitochondria to release energy. Pallavi, we have just now started with a new chapter. Look on the screen. It's breathing in exchange of gases, जिसको रेस्पिरेशन बोला जाता है. तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? आप सांस लेते हो, इनहेल करते हो ऑक्सीजन, और खाना हमारा अपने आप डाइजेस्ट होता है. तो डाइजेशन इज रेस्पिरेशन इज व्हाट? It is the biochemical process where food is oxidized to release energy. इसकी definition लिखोगे respiration की. It is a biochemical process where food is oxidized in mitochondria to produce energy. Definition of respiration. It is a biochemical process where food is oxidized Okay, lovely. We have just now started with a new chapter, that is breathing and exchange of gases. और इस चैप्टर में मुझे ये टॉपिक स्टार्ट किया respiration. Am I audible to you, Loveleen? Yes, ma'am. Okay. Mute yourself, Rajay. Ma'am, my name is Lavleen. Okay. And you're from which school? Loveleen, you're from which school? Loveleen, you are not audible, bete. Ma'am, 41D Government School. Okay, you're from 41. Okay. Yes, ma'am. Okay. अच्छा लवलीन बेटे हमने ये नया चैप्टर स्टार्ट किया ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. राइट डाउन द फर्स्ट डेफिनेशन, बी क्विक. रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लिखो बेटे. इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस where food is oxidized. Loveleen, please mute yourself, Rajay. Mic पे दोबारा click करो. Mic वाला icon है. Okay. Yes, it is a biochemical process where food is oxidized in mitochondria to release energy. Now coming to types of respiration, बिल्कुल आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो ये 8th onwards. There are two modes of respiration, aerobic and anaerobic. Yes, aerobic and anaerobic respiration. Aerobic में लिखो, it occurs in the presence of oxygen. It occurs in the presence of oxygen
where complete oxidation of food takes place. Where complete oxidation of food takes place. Aerobic respiration, it occurs in the presence of oxygen where complete oxidation का मतलब हम बोल रहे हैं breakdown, where complete oxidation of food takes place. Anaerobic में लिखो, it occurs in the absence of oxygen. It occurs in the absence of oxygen where food is incompletely oxidized. It occurs in the absence of oxygen where food is incompletely oxidized to CO2 and ethyl alcohol. Incompletely. Okay, Jyot. It occurs in the absence of oxygen where food is incompletely oxidized to CO2 and ethyl alcohol. और जहां आपने एरोबिक लिखा था वहां लिख लेना आप लोग हायर ऑर्गेनिजम्स. जैसे हम इसमें एग्जाम्पल लिखो हायर ऑर्गेनिजम्स. Ma'am, can you repeat once again? You were not audible. Okay. Just wait बेटे. Aerobic में है it occurs in the presence of oxygen where complete oxidation of food occurs. Anaerobic में it occurs in the absence of oxygen where food is incompletely oxidized to CO2 and ethyl alcohol. For example, lower organisms like yeast and bacteria. Lower organisms. Am I audible now, Malika? Yes, ma'am. Okay. For example, yeast and bacteria. Please write down this equation. CO2 और ethyl alcohol बोला plus ATPs. Anupam, mute yourself, Rajay. Your mic is on. So write down this equation. C6H12. Ma'am, anaerobic examples फिर से बता. Example is lower organisms like yeast and bacteria. I have Excuse me, ma'am. Yes, Tanvi. Ma'am, in aerobic respiration, 38 ATP of energy is released. Yes, 38. And we'll discuss that thing in detail in the chapter respiration in plants. कैसे 30? वैसे तो it is 36. 2 ATPs are used. So write down 36 ATP. 2 ATPs are used. हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे रेस्पिरेशन चैप्टर में. And in this only 2 ATPs are produced. तो यीस्ट में ऐसा हुआ. अभी एक और आपको एग्जांपल बताई बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया में आप लिखोगे C6H12O6 इन वर्म्स. वर्म्स मतलब जो मैंने आपको बताया था रिगलिंग वर्म्स, जो रेंगने वाले कीड़े होते हैं उनको बोलते हैं वर्म्स. तो पैरासाइट्स में it is lactic acid and energy. It is lactic acid plus energy. मैम हमारी बॉडी में भी तो प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड. Yes, in muscles. In मैम पर muscles. आपने इधर वॉर्म्स लिखे हैं सिर्फ. हाँ नहीं, वर्म्स भी हैं, लैक्टिक एसिड भी हैं, दोनों मसल्स भी हैं. ओके ओके. मैम जो पहले वाली क्वेश्चन थी वो एरोबिक की थी ना?
वो यीस्ट की थी बेटे, यीस्ट। ओके। एनारोबिक में ही यीस्ट। और अब हमने पढ़ा वर्म्स, तो मैंने आपको ये दो एग्जांपल्स लिखवाई हैं, बैक्टीरिया एंड यीस्ट। तो बैक्टीरिया और यीस्ट की एग्जांपल्स दे दी आपको। मैम अब लिखो फॉर्म्स में हमने C6H12O लेना। C6H12O6। मैम आपने सिर्फ O लिखा। हाँ राइट बेटे, C6H12O6। Now write down the heading lower organisms. कहते हैं लोअर ऑर्गेनिजम्स कैसे अपने आप को जिंदा रखते हैं, कहाँ से सांस लेते हैं। जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, अमीबा, पैरामीशियम, दे रिस्पायर थ्रू देयर जनरल बॉडी सरफेस। जैसे अमीबा है, अमीबा ने ऑक्सीजन बाहर से लेनी है, तो इट अकर्स बाय डिफ्यूजन। You know what is diffusion? Movement from high concentration to low concentration. तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेल्युलर है, चाहे वो अमीबा है, चाहे वो पैरामीशियम है, चाहे प्रोटोजोन्स हैं, चाहे सीलेंट्रेट्स हैं, they are all single celled organisms and they respire through their general body surface. तो आप लोअर ऑर्गेनिजम्स के बारे में लिखोगे, क्योंकि इस चैप्टर में हमने डिटेल में ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ना है, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो अभी स्टार्टिंग में इनिशियली इट इज बोरिंग, बट अदरवाइज इट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो राइट डाउन लोअर ऑर्गेनिजम्स में आप लिख रहे हो स्पॉन्जेस, प्रोटोजोन्स, respire through their general body surface. Sponges, protozoan, they respire through their general body surface by diffusion. I hope सभी को समझ आ रहा है। Sponges, protozoans, they respire through their general body surface by diffusion. Special structure called gills, जितने भी पानी में रहते हैं वो रिस्पायर किससे करते हैं? गिल्स। Special structures called gills are used by aquatic arthropods. फिशेस की बात नहीं हो रही, आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स में Mollusk. यस, मोलस्क हो गए, आर्थ्रोपोड्स हो गए, दे आर डिफरेंट। जैसे क्रैब्स हैं, प्रॉन्स हैं, स्पाइडर्स हैं, ये आर्थ्रोपोड्स और मोलस्का में आते हैं। क्रैब्स, प्रॉन्स, स्कॉर्पियंस, ये सारे रिस्पायर किससे करते हैं? पानी में रहते हैं, और दे रिस्पायर थ्रू गिल्स। तो स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गिल्स आर यूज्ड बाय एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क। नेक्स्ट पॉइंट, स्किन इज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। क्या हम लोग रिस्पायर करते हैं स्किन से? नो। स्किन इज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एनालिड्स। जो बच्चों ने नहीं किया वो ध्यान से सुनेंगे। एनालिड्स मतलब बात हो रही है अर्थवर्म की। अर्थवर्म का स्ट्रक्चर हम डिटेल में पढ़ेंगे रिवीजन क्लास में। तो अर्थवर्म्स में ये मॉइस्ट होते हैं, गीले होते हैं। दे जब भी रेन शॉर, जब बहुत बारिश होती है, अभी भी आप इनको देखोगे अर्थवर्म, ये आपको सॉइल में बहुत कॉमनली मिलेंगे। और ये रिस्पायर करते हैं क्योंकि ये रहते हैं मडी वाटर में, मिट्टी वाले पानी में, कीचड़ में। तो इसीलिए दे रिस्पायर थ्रू देयर स्किन। तो स्किन इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एनालिड्स। एनालिड का मतलब यस, इन एम्फीबियंस, ये लिखना है बेटे आपने नेक्स्ट। इन एनालिड्स एंड इन एम्फीबियंस। ये दो ऐसे जानवर हैं जो अपनी स्किन से रिस्पायर करते हैं। स्किन इज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एनालिड्स एंड एम्फीबियंस।
ऐसा क्या है जो स्किन से रिस्पायर कर सकते हैं? बिकॉज Frog. अच्छा. There's yes amphibians. नहीं, आई एम आस्किंग क्यों ऐसा कि दे कैन रिस्पायर थ्रू देयर स्किन? बिकॉज moist. Moist skin. मैम moist skin. yes any other point for respiration in the skin, from the skin? देखो, as their skin is thin, moist, highly vascular. याद रखना, जहां ज्यादा ब्लड सप्लाई होगी वहां ज्यादा जल्दी रेस्पिरेशन होगी. as their skin is thin, बहुत पतली है, आर पार हवा जा आ सकती है. thin, it is moist and permeable and richly supplied with blood. thin, moist, richly supplied with blood. अब हम बात कर रहे हैं इंसेक्ट्स की. इंसेक्ट्स, मक्खी मच्छर जो होते हैं, हाउस फ्लाई है, वो लोग कैसे रिस्पायर करते हैं? अगर आपके हाथ से कोई इंसेक्ट या कॉकरोच कभी मरता है तो आपने देखा होगा कि ब्लड नहीं होता उनकी बॉडी में, एक लिक्विड सा निकलता है. बिकॉज दे डू नॉट कैरी दिस रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन. जो हमारे में लाल पिगमेंट है, रेड कलर ऑफ ब्लड, इज बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन. इंसेक्ट्स के अंदर वो हीमोग्लोबिन नहीं होता एंड दे रिस्पायर. लिखो, insects do not have respiratory pigment and they respire through trachea. Respire through trachea. अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें, इनकी बॉडी में बिल्कुल साइड्स पे होल्स हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट अ फ्लाई. सपोज दिस इज अ फ्लाई और इंसेक्ट. इसकी बॉडी में आसपास आपको होल्स दिखेंगे. इन होल्स को बोला जाता है स्पाइरिकल्स. एंड these spiracles together form the trachea. तो आपको पता चल गया होगा कि इंसेक्ट्स कैसे रिस्पायर करते हैं. क्योंकि इनके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है तो दे रिस्पायर थ्रू दीज होल्स विच आर नोन एज स्पाइरिकल्स, और इस सिस्टम को हम नाम देते हैं ट्रिकिया. नेक्स्ट लिखो, इंसेक्ट्स के बाद हम लिखेंगे वर्टिब्रेट्स. जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे नहीं किया वर्टिब्रेट्स का, आई एम टेलिंग यू what are vertebrates. Vertebrates are those organisms which have vertebral column. मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन है, दैट इज योर वर्टिब्रल कॉलम. जब हम मदर बॉडी में थे, ध्यान से देखो, व्हेन वी आर इनसाइड द मदर बॉडी, जो हमारे पीछे रीढ़ की हड्डी है वो रॉड लाइक थी. इट वाज फ्लेक्सिबल, इतनी सॉफ्ट थी कि हमारी बॉडी जो क्रम्पल्ड फॉर्म में मदर बॉडी में थी, अगर ये स्टिफ होती रीढ़ की हड्डी जैसे अभी है, स्टिफ है, तो ये ब्रेक कर सकती थी ड्यूरिंग पार्चुरेशन. पार्चुरेशन होता है जब मदर बॉडी से बाहर आते हैं. तो इट वाज अ थिन रॉड लाइक स्ट्रक्चर. तो इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को जब हम मदर बॉडी में थे, इसको बोला गया था नोटोकॉर्ड. व्हाट इज नोटोकॉर्ड? थिन रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द embryo या embryonic stage. Present inside the embryo, this rod-like structure is known as notochord. इसीलिए हम chordates हैं, because we had notochord during our embryonic stage. लेकिन जब हम बड़े हुए, मदर बॉडी से बाहर आए, हमारी रीढ़ की हड्डी, that is vertebral column, फॉर्म होनी शुरू हुई, और vertebral column अब हम में है, we are vertebrates. Vertebral column is your backbone. तो वर्टिब्रल कॉलम किससे बनी है? नोटोकॉर्ड से. तो अब हम बात कर रहे हैं वर्टिब्रेट्स की. तो वर्टिब्रेट्स में पूछा गया कि कैसे रिस्पायर करते हैं, मतलब ये हमारी बात कर रहे हैं. एंड वी हैव वेल डेवलप्ड सिस्टम, दैट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिस्पायर थ्रू लंग्स. लेकिन वर्टिब्रेट्स में पहले आती हैं फिशेस. लिखो, वर्टिब्रेट्स में लिखो, फिशेस रिस्पायर्स थ्रू गिल.
whereas reptiles, birds, mammals, reptiles हम snakes को बोलते हैं reptiles, lizards को बोलते हैं reptiles, birds सबको पता है, mammals हमें mammal इसलिए because we have this mammary gland. Mammary gland का मतलब समझना मीनाक्षी, mammary gland is Mating gland. yes milking gland, जो फीमेल्स अपने बच्चों को फीड करती हैं थ्रू दिस मिल्किंग ग्लैंड्स, दे आर नोन एज मेमरी ग्लैंड्स। आधे से ज़्यादा बच्चे इसका नाम लिखते हैं मेमरी, मेमरी होती है यादाश्त, इसका कुछ लेना देना नहीं है। इट्स अ मेमरी ग्लैंड, MAMMARY। दिस इज योर मिल्किंग ग्लैंड, इट इज फंक्शनल इन फीमेल्स एंड नॉन फंक्शनल इन मेल्स। इसीलिए हम मैमल्स हैं बिकॉज हमारे में मेमरी ग्लैंड्स हैं, और मैमल्स जो हैं हम लोग रिस्पायर करते हैं, लिखो, whereas reptiles, birds and mammals respire through lungs. We respire through lungs. Now, what is the meaning of memory? Memory gland. Yes, ma'am. बच्चे मेमोरी ग्लैंड अनुभव बताया, मिल्किंग ग्लैंड्स, Oh, मिल्किंग ग्लैंड्स, functional in females, non functional in males. Okay, milk producing glands. Okay, तो रेस्पिरेटरी Okay, ma'am. सिस्टम। ओके, तो अब हम मैमल्स की बात कर रहे हैं, हमारी बात कर रहे हैं, तो वी रिस्पायर थ्रू लंग्स। इवन बर्ड्स, इवन रेप्टाइल्स, बर्ड्स तो कभी रुकती नहीं। अभी हम एक चैप्टर में पढ़ेंगे कि दे आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड ड्यूरिंग देयर फ्लाइट दे डू नॉट गेट फटीग, देयर फ्लाइट मसल्स डू नॉट गेट फटीग, वो थकती नहीं है। आप एक इमेजिन कर सकते हो, छोटी सी बर्ड है, इतनी दूर फ्लाई करके ऊपर तक जाना, फिर कितनी देर कॉन्टिन्यूसली फ्लाई करते रहना इन सर्च ऑफ वाटर, फूड और शेल्टर, तो वो थक के गिर क्यों नहीं जाते? जैसे अगर आप लोगों को कोई स्टर्नस वर्क बोले, आपको बोले हाथ हिलाते रहो अपने, और कॉन्टिन्यूसली फॉर 1 आवर, मे बी फॉर 2 आवर, मे बी फॉर होल डे, तो पॉसिबल नहीं है, हमारी बॉडी तो फटीक कर जाएगी, अगले दिन आप उठ ही नहीं पाओगे। तो what is in their body, we'll discuss that also, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो भी। बट बर्ड्स दे ऑल्सो रिस्पायर थ्रू लंग्स, और जितनी छोटी बॉडी होती है उतना ब्रीदिंग रेट हाई होता है उनकी। अगर दिल की धड़कन सुनोगे, बहुत तेजी से ब्लड वापस आएगा, और जितनी बड़ी बॉडी होती है, एज इन केस ऑफ एलिफेंट्स, उतना रेस्पिरेटरी रेट स्लो होगा, क्योंकि ब्लड पूरी बॉडी में पंप होगा फिर वापस आएगा, तो इट विल टेक टाइम। And as compared to elephants, birds are very active, so that is why they require more oxygen, they require more energy as compared to elephants. So again, write down another definition, types, likho, heading likho, types, on the basis of the modes of respiration, different modes of respiration. अब आप लिखोगे external and internal. रेस्पिरेशन में दो तरह की टाइप्स आएंगी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अभी हमारी बॉडी की बात हो रही है, देखो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन लिखो, इट इंक्लूड्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन। मैम ये डिफरेंशिएट की तरह लिखना है। यस, आप पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हो, दैट विल बी इजी, राइट इन पैराग्राफ्स फॉर्म ओनली। External respiration, it includes exchange of gases between external environment and the blood of respiratory organ. It includes exchange of gases between external environment and blood of respiratory organ.
इंटरनल रेस्पिरेशन में लिखो, सॉरी एक्सटर्नल में एक और पॉइंट लिख लो, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस. Respiration and breathing. Respiration लिखो, it is a biochemical process. मैम ये एक्सटर्नल में लिखना. No, it's difference between respiration and breathing. हम It's another internal, different Ma'am, we difference. were doing external and internal. internal. आपकी आवाज क्रैक हो रही है मैम, वॉइस नहीं आ रही. Ma'am, your screen is not. Ma'am, your voice is cracking. So actually light is not here. So am I audible now? Yes, ma'am. Am I audible now? Okay. Yes. Yes, ma'am. अच्छा internal में आपने लिखा, okay, internal में आपने लिखा exchange of gases between blood and the body cells. Exchange of gases between blood and body cells. और internal में एक और point लिखो, it is a biochemical process. It is a biochemical process. मैम रिपीट कर दो, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया. Okay, बच्चे it involves exchange between blood and body cells. Internal में आप लिख रहे हो, और दूसरा point लिख रहे हो, it is a biochemical process. Now write down difference between respiration and breathing. Respiration and breathing. मैम आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही. बच्चे I'm trying to connect. Breathing and respiration. Respiration में लिखो, respiration is biochemical process. And breathing is a biophysical. Respiration क्या है? Biochemical. It is a biochemical process. Whereas breathing is a biophysical. Breathing, respiration में लिखो, it involves exchange of gases between external environment and blood. और breathing में लिखोगे between blood and body cells. मैम रिपीट कर दो एक बार. Respiration is in exchange of gases between external environment and blood. Exchange of gases between external environment and blood.
whereas breathing is exchange of gases between blood and body cells. Respiration में energy is released उसमें था blood and body cells. Breathing में now I am talking about respiration. It occurs energy is released in the form of ATP. Energy is released in the form of ATP. Whereas in breathing, no energy is released. Respiration में देखो, it is an intracellular process. I'm writing down the spellings. It is an intracellular process. And this is extracellular process. It is an intracellular process. And this is extracellular process. Janvi, we are doing this differences. तो आपने ये लिखे थे respiration और breathing में 2 points आपने लिख लिए थे I guess. आपका फिर network issue आया. Yes, Respiration. ma'am. Which write down the third point. I'm showing you the screen. Write down the third point. Energy is released in the form of ATP. No energy is released. इसके बाद आपको लिखवाया respiration is intracellular. Breathing is extracellular process. Next point. It occurs in all the cells of body. It occurs in all the cells of the body. Breathing occurs in certain organs of the body. Again, write down difference between respiration and combustion. These are the basic questions asked. Difference between respiration and combustion. Then we'll move to the main Ma'am, topic. can you repeat the last point again? Yes, it occurs in all the cells of body. Or breathing occurs in certain organs. Now write down respiration and combustion. फिर से लिखो इसमें पल्लवी रेस्पिरेशन में बायोकेमिकल प्रोसेस and combustion is a biophysical process. और कंबशन में आपने लिखा बायोफिजिकल प्रोसेस. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. It is controlled by
रेस्पिरेशन में लिख रहे हो, इट इज कंट्रोल्ड बाय नंबर ऑफ एंजाइम्स. It is controlled by number of enzymes. Combustion में लिखो not controlled by enzymes. इसमें लिखो टेम्परेचर. जब हम रिस्पायर करते हैं हमें बॉडी टेम्परेचर इज ऑलवेज लो. द टेम्परेचर रिमेन्स लो. कंबशन में कोई भी चीज जब जलती है टेम्परेचर राइजेस. टेम्परेचर राइजेस कॉन्स्टेंटली और इसमें टेम्परेचर रिमेन्स लो. इसमें लिखो एनर्जी इज stored in the form of ATP. Not stored, energy is released in the form of ATP. ATP, adenosine triphosphate. और इसमें लिखो एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट. Now everyone please stop with the writing part and look at your screen carefully because this topic is very very important. आपको अगर समझ आएगा तभी आप लिख पाओगे. बायो में बहुत सारे बच्चे मुझे ये पूछते हैं कि मैम हमें क्या क्रैम करना है, जैसे बोलते हैं रट्टे मारने हैं. इट इज नॉट लाइक दिस. सबसे पहले बेसिक प्रोसेस होता है यू हैव टू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट. है क्या चीज, वो वर्ड्स क्या है. सेकेंड टाइम आप उसको समझ के उसको फिर आपको दोबारा जब आप रीड करते हो उसी चीज को तो और अच्छे से समझना शुरू हो जाता है. थर्ड टाइम जब आप रीड करते हो दैट इज दी लर्निंग. तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करोगे फिर लर्न होगा और फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करोगे उसको तो आपको लर्न ऑलरेडी आपके दिमाग में स्टोर हो चुका होगा. दिस इज व्हाट इज लर्निंग. एंड ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है. अगर हम एक बार सोचें कि आपको लर्न हो जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज सिलेबस इज वेरी लेंथी. जब कोई टॉपिक जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हो गिव इन योर बेस्ट. बस आप उस टाइम पे अपना कंप्लीट टाइम अपना फोकस अपना उसी क्लास में रखो. ये नहीं कि मैंने शाम को जाना है घूमने या मेरे पेरेंट्स मेरा वेट कर रहे हैं या मेरे फ्रेंड्स बाहर वेट कर रहे हैं या मुझे किसी को कॉल करना है. लीव एवरीथिंग अपार्ट बिकॉज दिस टाइम इज वेरी क्रूशियल. अब टीचर्स भी के पास भी बहुत लिमिटेड टाइम है, आप लोगों के पास भी बहुत लिमिटेड टाइम है. जो जब भी जितनी भी टाइम आप पढ़ाई को दे रहे हो just concentrate on that topic. So I'm just starting with this topic, human respiratory system. Respiratory system अगर हम बात करते हैं it starts with the nose. नोज में आपने समझने की कोशिश करनी है. दिस नोज ओपनिंग होती है नॉस्ट्रल्स. नॉस्ट्रल्स जो हैं नेजल चैम्बर में जाती हैं. नेजल चैम्बर में हमारे नेजल हेयर होते हैं और यहाँ पे ही हमारे पास ऑल्फैक्टरी सेल्स हैं. ऑल्फैक्टरी जिसकी वजह से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं. कहा जाता है around 1500 different types of smells you can detect. Nasal hair इनका मेन फंक्शन क्या होता है? To trap the dirt particles या to trap the microorganism या insects. गलती से अगर नाक में कोई इंसेक्ट चला गया है, कोई एंट चला गया है, कोई डर्ट पार्टिकल चला गया है तो सबसे पहले एयर को प्यूरिफाई करते हैं. तो दिस इज द फर्स्ट एंट्री, दैट इज योर नॉस्ट्रल. दो हैं, पेयर में है नॉस्ट्रल. ओपन्स इनटू नेजल चैम्बर. नेजल चैम्बर opens
into a common opening which is known as pharynx. फेरिंग्स में हम एक चीज पढ़ेंगे हमारे माउथ में। तो ये टंग थी, ये टॉपिक है हमारा डिलीट हो गया, बट अदरवाइज इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो अगर है मलिका के स्कूल में तो आई विल डेफिनेटली डिस्कस दैट चैप्टर। सो डाइजेस्टिव सिस्टम में एक रीजन आता है, युल्वा बोलते हैं उसको। उस रीजन एक हैंगिंग पार्टिकल होता है। आप देखोगे अगर आपको बोलते हैं ना डॉक्टर्स अपना मुंह खोल के सांस लो, तो एक बेल शेप स्ट्रक्चर, एक घंटी सी ऐसे आवाज, मतलब वो आपको दिखेगा, एक हैंगिंग पार्टिकल है, दैट इज योर वुल्वा। युल्वा जो है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, जब आप खाना खाओगे ये फ्लैप ऊपर की तरफ चला जाता है, नाक को बंद कर देता है। जब सांस लेते हैं तो ये नीचे की तरफ आ जाता है। दिस इज हाउ इट कंट्रोल्स दी ओपनिंग। ये दोनों ओपनिंग्स को कंट्रोल करता है दिस हैंगिंग पार्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आजकल जो कोविड का टेस्ट भी कर रहे हैं वो यहाँ से नेजल स्वैप लेते हैं, नेजल स्वैप, क्योंकि वायरस जो है ना यहाँ पे ही ये जो नेजल पार्ट है वो आपके इसी रीजन से जो वायरस है वो इधर से ही एंट्री कर रहा है, और उसकी सीट ही यहाँ पे, उसने ग्रो ही यहीं से करना है, देन इट इज एंटरिंग इनटू योर बॉडी। कोविड-19 का ब्लड से क्यों नहीं होता टेस्ट? बच्चे वायरस है ना, तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही खराबी कर रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा ब्लड बाहर ही है, मतलब जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन अभी हम पढ़ेंगे तब आपको आइडिया होगा। तो हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही ग्रो कर रहा है, म्यूकस सिक्रीशन में, म्यूकस में रहता है ये। Now, is it viral or bacterial disease? इट्स अ वायरल डिजीज, वायरस है बेटे, ठीक है, कोविड-19। तो अब ओके, और इसमें अब देखो ये माउथ और नोज की जो कॉमन ओपनिंग, दैट इज योर फेरिंग्स। फिर इसके बाद आप देखते हो जो हमारा जो फूड पाइप, ये विंड पाइप आएगी आगे, दिस इज योर फूड पाइप, एंड दिस विंड पाइप हैज रिंग्स। अगर आप अपने गले को दबाओ तो आवाज थोड़ी सी, अगर आप गले को दबा के करना, आवाज करना शुरू करना, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि रिंग्स कुछ दबेगा, आपकी आवाज नहीं निकलेगी। तभी कहते हैं किसी का गला दबाने से पहले वो रेस्पिरेटरी चोक कर जाता है। अभी आजकल सुशांत का केस चल रहा है, तो कह रहे हैं उसको चोक किया, उसके गला दबा के डेथ किए। तो उसका गला दबाना इसलिए क्योंकि फ्रंट पे है विंड पाइप। एंड जस्ट डू वन थिंग एवरीवन, जस्ट पुट योर इंडेक्स फिंगर होती है वो जो पॉइंटिंग फिंगर, अपनी इंडेक्स फिंगर राइट हैंड की नोज के नीचे रखना, और सांस अंदर लो, सांस बाहर लो, निकालो, इनहेल एंड एक्सेल। तो यू मस्ट हैव सीन अ डिफरेंस। पलक, आप लोगों को याद होगा बेटे, कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस? Can anyone say what is the difference between your inhaled and exhaled air? Ma'am, diaphragm. Yes, Seerath and Palak. Yes, turn by turn. Yes, Seerath. Ma'am, when we Hot breathe, air our and diaphragm flatten and chest No. cavity No, increases. no. Seerath, yes. ओके बच्चे, आपने अपनी एक फिंगर, पॉइंटिंग फिंगर जो इंडेक्स फिंगर है, नाक के नीचे रखो, इनहेल करो और एक्सेल करो। यू विल सी द डिफरेंस। अभी यू विल सी द डिफरेंस। जो एयर आपने इनहेल की वो लाइटर थी, एक्सेल की वो हैवी है और थोड़ी सी गर्म है। यू मस्ट हैव सीन द Yes, डिफरेंस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, so this is Yes, the ma'am. difference. Yes, because inhaled air has a lighter density। जब हमारे नाक से वो बाहर आई, हमारे नाक में कुछ ऐसे सेल्स हैं, नेजल चैम्बर में कुछ ऐसे सेल्स हैं जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, हवा को थोड़ा भारी कर देते हैं। दे इंक्रीजेस देयर डेंसिटी, जिससे हमारी हवा और भारी हो जाती है। और यहाँ कुछ ऐसे सेल्स हैं जो गर्म करते हैं हवा को, बिकॉज बैक्टीरियाज गेट किल्ड एट हायर टेम्परेचर। तो आधे बैक्टीरियाज आपके इस गर्मी से मर जाते हैं। और उसके बाद जो है मॉइस्चर में ये हवा थोड़ी भारी होती है, देन इट एंटर्स इनटू योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब मैंने बहुत बार बच्चों से एक क्वेश्चन पूछा है कि आपके विंड पाइप आगे है या फूड पाइप आगे है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स दे से दैट इट इज आवर फूड पाइप विच इज इन फ्रंट, बट मैंने आपको बता दिया है कि व्हेन यू ट्राई टू प्रेस
इन फ्रंट ऑफ योर नेक और बोलने की कोशिश करो। अभी आप लोगों के माइक म्यूट पे हैं तो आप गला दबाओ, बहुत जोर से मत दबाना, हल्का सा दबाने के बाद आवाज निकालो, आप बोलो, देन यू विल फील द डिफरेंस, देयर विल बी सम चेंज इन योर वॉइस। आपकी आवाज जो है थोड़ी तिखी हो जाएगी, उससे पता चल जाएगा देयर इज समथिंग रिलेटेड टू योर एयर कैविटी, और थोड़ा चोक भी होगा आपका। इज इट? तो Yes. yes, Yes, ma'am. it is your Yes, wind ma'am. okay, okay, so अब let us say from the front part अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे हवा जो आपकी जो विंड पाइप है that has a flap like structure, एक ढक्कन है। Epiglottis. Yes, it is, yes, महक, yes, पलक, it is epiglottis because ये जो जो पहली रिंग है, अभी हम पढ़ेंगे what are these rings। पहली रिंग का नाम है glottis। Obviously, glottis के ऊपर ढक्कन है तो इसका नाम दे दिया। It is a flap-like structure. It is known as epiglottis, and this epiglottis regulates the entry of air into our respiratory tract. आपके lungs में हवा ने जाना है तो उसको कंट्रोल कर रही है this epiglottis. While we eat, this remains closed. कहते हैं खाना खाते हुए बोलना नहीं चाहिए, खाना खाते हुए पानी पीते हुए बोलना नहीं चाहिए, बिकॉज जैसे ही आप बोलते हो ये फ्लैप उठता है, और अगर पानी यहाँ गलती से चला गया या खाना चला गया तो चोक हो जाएगी और इंस्टेंट डेथ। एंड आई एम गोइंग टू गिव यू एन इंस्टेंट ब्रदर और सिस्टर का ये रीसेंट केस था जिसमें छोटे बच्चे दोनों खेल रहे थे बेड पे, तो बच्चे को वॉमिट आई छोटे ब्रदर को, तो उसकी सिस्टर ने उसको वहीं पे पॉइंट किया कि नहीं वॉमिट नहीं करना, वॉश रूम में जाना है या वॉश बेसिन में जाके वॉमिट करना है या टॉयलेट में जाना है। तो वो बच्चे ने क्या किया, अपना मुंह बंद कर लिया, एंड दिस इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। वॉमिटिंग इज अ रिफ्लेक्स एक्शन, अपने आप आती है और बहुत प्रेशर से इजेक्ट आउट होता है वो खाना। उस बच्चे ने अपना मुंह बंद कर लिया, अपनी वॉमिट को वहीं रोक लिया, बच्चा है निकला नहीं कुछ भी बाहर, उसने उसकी विंड पाइप में चला गया और इंस्टेंट चोकिंग की वजह से डेथ हो गई। तो इसीलिए बोला जाता है अगर किसी को वॉमिट आ रही है उसको वहीं करने दो, ये नहीं बोलो कि यहाँ कपड़े गंदे हो जाएंगे, आपका कारपेट गंदा हो जाएगा, आपकी बेड गंदा हो जाएगा। इट्स ओके विद दैट बिकॉज इट इज लाइफ थ्रेटनिंग जो है प्रोसेस। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड नाउ कि इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप अपने जो रिफ्लेक्स एक्शन है इमीडिएट होते हैं, इनको रोकना बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो ये बहुत ध्यान रखना है, अगर किसी को वॉमिट आ रही है तो लेट इट बी। अब ऐसा नहीं है कि उसको देखते रहो, आप क्लीन करो या उसको ऐसे ही चीजें प्रोवाइड कर दो जैसे एज इफ यू हैव सम पॉलिथीन और मे बी सम टॉल, मतलब उसको ट्राई टू अवॉइड द स्प्रेडिंग प्रोसेस। ये नहीं है कि मैम ने तो बोला है कि उसको करने दो आराम से, गंदा होता है होने दो, इतना भी नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली इट विल प्रोड्यूस फाउल स्मेल और डर्ट और इवन फंगल इन्फेक्शन अगर आपके कारपेट पे गिर गया है और आपने उसे क्लीन नहीं किया एंड यू आर Excuse playing me, ma'am. yes Ma'am, can you please once again say what these ring-like structures are called? yes these ring like structures, Yes, ma'am. the last part is called as glottis, जो first ring है उसको बोलते हैं glottis। I'm coming to that part Tanvi, I'm trying to explain the process। ये epiglottis का क्या function था, it is a flap like structure, this is a flap like structure epiglottis। epiglottis जो है इसमें फर्स्ट रिंग थी ग्लोटिस, इसी के साथ चलता है लेरिंग्स। लेरिंग्स इज व्हाट एडम्स एप्पल, सिर्फ आज समझना है आपने, नेक्स्ट क्लास में आई विल डिक्टेट एवरीथिंग। लेरिंग्स इज योर वॉइस बॉक्स, इट इज आल्सो नोन एज एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल, एडम्स जो एडम था, एडम और ईव अगर आपने सुना हो, कहते हैं बाइबल में भगवान ने दो लोगों को हेवन से नीचे फेंक दिया था, नीचे भेज दिया था अर्थ से, वो थे एडम और ईव, आदम और हवा बोलते हैं, हम पढ़ेंगे +2 में डिटेल में एवोल्यूशन चैप्टर में। तो एडम और ईव ने से हम लोग उनसे हम पैदा हुए हैं, आगे उनके बच्चे हैं हम। Ma'am, it is real. नहीं, बाइबल के अकॉर्डिंग है ये, इट इज नॉट रियल, साइंटिफिकली इट इज डिफरेंट। तो एवोल्यूशन में हम पढ़ेंगे व्हाट इज रियल। सो इसमें एडम्स एप्पल, वो जो लड़कों के, अब आप नॉर्मली जो टॉल बॉय, इनफैक्ट अभी जितने भी बॉयज हैं आपकी क्लास में तो आप उनमें देखोगे आगे जो हैंग करता है, ऐसे लगता है
एक बेल शेप स्ट्रक्चर है नेक रीजन में, दैट इज द एडम्स एप्पल. इट इज प्रोमिनेंट इन मेल, इट इज लेस प्रोमिनेंट इन फीमेल. और सबसे सुंदर आवाज, सबसे सुरीली आवाज किसकी होती है? कोयल. तो उसके अंदर जो है नाइटिंगेल, कोयल, इनकी आवाजें सुरीली होती हैं. तो सिरिंग्स, तो उनके वॉइस बॉक्स को स्पेशल, अगेन एन क्वेश्चन फ्रॉम नीट, देयर वॉइस बॉक्स इज नोन एज सिरिंग्स, SYRINX, सिरिंग्स. The voice box in case of birds is known as syrinx. They have special voice box. अब इसके बाद जो पूछा आपने क्वेश्चन, what are these rings made up of? These rings are made up of a cartilage, and this is known as trachea. Another name for trachea is your windpipe, or trachea is approximately 11 centimeter long, 11 to 12. आपका जो फुट रूल छोटा स्केल होता है, that is 12 centimeter, तो उतना लंबा आपका विंड पाइप है ट्रेकिया. ट्रेकिया दूसरा नाम है विंड पाइप का. और ट्रेकिया जो रिंग्स हैं, अब आप देख सकते हो फ्रंट में तो पूरी हैं, दिख रही हैं रिंग्स, कार्टिलेज की बनी है. अभी हम पढ़ते हैं व्हाट इज कार्टिलेज. पीछे से है ही नहीं है, तो इनकम्प्लीट सी शेप्ड, क्योंकि इसके पीछे ही कौन सी वॉल आ गई? फूड पाइप. जैसे दो घरों में एक कॉमन दीवार है, तो इसमें एक कॉमन वॉल है फूड पाइप की. एंड नाउ दिस ट्रेकिया लीड्स इनटू ब्रोंकाई. ये ब्रोंकाई में जाता है. ब्रोंकाई लीड्स इनटू ब्रोंक्यूल्स. ब्रोंकाई लीड्स इनटू ब्रोंक्यूल्स. ब्रोंक्यूल्स और छोटे पार्ट में टूटती हैं. Bronchioles leads into alveoli, a sac-like structure. And alveoli, this is alveoli. Alveoli leads into lungs. And this leads into lungs. The outermost membrane of lungs is very special. It is made up of a membrane which is known as pleural membrane. जैसे balloon like structure, हवा भरती है तो फूल के फैल जाता है, bladder like balloon. तो स्पेशल मेम्ब्रेन है जो स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन है. कोई मेम्ब्रेन इतनी स्ट्रेचेबल नहीं है. स्किन को अगर मैं सोचूं बहुत स्ट्रेचेबल करके वापस छोड़ दूं उसी शेप में आ जाएगी, नो. बट प्लूरल मेम्ब्रेन which is present which is the outermost covering of lungs is highly distensible. It can expand and comes back to its shape on its own. This is a special feature of this membrane, pleural membrane. तो I hope सभी को सिर्फ structure clear हुआ होगा आज. तो this was the upper part. Yes, upper part में nasal chamber, nasal cavity, nostrils, nasal chamber, nasal cavity, pharynx. pharynx के बाद हमने पढ़ा larynx. larynx के बाद पढ़ा trachea. trachea leads into bronchi. bronchi into bronchioles. bronchioles into alveoli. alveoli into lungs. I'll share the picture in the group right away. I'll share this beautiful picture with you. Yes? मैम डिलीटेड सिलेबस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आएगा? नहीं कॉम्पिटिटिव में बेटे अभी नहीं डिक्लेयर हुआ, बट आपके सीबीएसई में नहीं आएगा. ओके, सीबीएसई में नहीं आएगा, कॉम्पिटिटिव में डिक्लेयर नहीं हुआ. तो ओके, यस बच्चे, यस बैंक, इतना ही मैंने. ओके, गॉट इट. बच्चे आप लोगों को सिर्फ स्ट्रक्चर करवाना था. आई होप दिस स्ट्रक्चर इज क्लियर टू एवरीवन. रेस्पिरेटरी सिस्टम मैम एक बार रिपीट करना कि क्या किसको लीड होता है? क्या होता है, मेरे को समझ नहीं आया बेटे. जैसे आप बता रहे थे कि ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस को लीड करता आगे, एक बार फिर से बता दो. ओके बच्चे, नहीं मैंने स्टार्ट किया था नोज से आया नॉस्ट्रल्स. नॉस्ट्रल्स जो है सबसे पहली ओपनिंग है. नॉस्ट्रल्स के बाद नेजल चैम्बर, फिर नेजल कैविटी, फिर उसके बाद फेरिंग्स. ऐसे बोल रहा हूँ, फेरिंग्स था, Yes, ma'am. लेरिंग्स.
Yes, yes, Mayank, you can leave now, bete. Larynx. Larynx के बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्विलाई, alveoli leads into lungs, and lungs, they have special membrane which is known as pleural membrane. Okay, I'll share Yes, the ma'am. picture. Yes, ma'am. I'll share the diagram, आपको clear हो जाएगा, and you need to make the diagram also. तो आपने सिर्फ अभी diagram बनाना है इसका respiratory system का. Lavleen, I'll add you in the group. Pallavi, are you there in the group? Pallavi? Yes, ma'am. Okay, okay. But I'll share the other chapters in your private number. So आपके जो personal numbers पे I'll share the files. और Lavleen, I'll add you in the group बेटे. I hope सभी को समझ आ गया होगा. And we'll discuss these questions maybe in the Sunday class, because Mayank is not here. Ria has asked me not to discuss these questions because it's her birthday today. So I'll discuss maybe in the Sunday's class. Okay. So, okay, bachcho. Take care, everyone. Bye bye for Thank now. you, There's ma'am. no Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, bachcho. Take care. Bye bye.